Hello everyone. In our previous lecture, we studied about it in detail about the deflection of beam, and by in previous lecture we already studied that the to find the deflection of any beam with different type of methods, and now we are moving forward to our next topic, which is shear stress in beam. So basically, shear force is related to change in bending moment between adjacent section. So basically, if we are talking about the beam and shear stresses in beam, so basically it is states that shear stress is related to the change in bending moment between adjacent section. मतलब दो सेक्शन आपके कोई हैं बीम के, उसमें अगर आपका shear bending moment चेंज हो रहा है तो वो आप shear force से ही रिलेट करेगा. Like we already studied that dm upon dx is equals to v. This v represents the shear force and the m represents the bending moment. And here dm upon dx states that the change in bending moment, which is directly equal to the shear force. Okay, as shown in figure, let us consider a cutout section from a beam at this. अगर ये एक बीम है, इसका एक सेक्शन आपने काटा हुआ है, ठीक है. At section 1 PADS, PADS पहले सेक्शन की बात करेंगे अगर, तो उसके रिगार्डिंग आपका एरिया 1 हो जाएगा. ये लिमिट कितनी है इसकी, एरिया 1 माइनस m1 y अपॉन आई इंटू डी ए. ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि ये m1 y अपॉन आई ये कैसे आया. जब आपको बेसिक बीम का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था तब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं. सो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस m1 अपॉन आई इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इसकी एरिया a1 की है y इंटू डी ए इज इक्वल टू m1 q अपॉन आई, where y is the distance of any fiber from the neutral axis. ठीक है. Q is equals to a1 y into dA. Y into dA इसको आपने Q लिख लिया है. फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस F2 is equals to m2 Q upon I. If m2 is equals to m1 plus dm and f2 is equals to f1 plus df, then df is equals to dm upon I Q. क्लियर है ये चीज. अगर m2 की वैल्यू m1 प्लस dm है और f2 इज इक्वल टू f1 प्लस df है तो df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm अपॉन आई क्यू. इस ये दोनों इक्वेशन और इसको रिलेट किया गया है. ओके. फोर्स पर यूनिट लेंथ df अपॉन dx इज इक्वल टू df अपॉन dx इज इक्वल, दोनों पोर्शन में आप dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा. This 4 per unit length is termed as the shear flow Q. Substituting for dm upon dx is equals to v. तो ये जो df upon dx है इसको हम कहते हैं shear flow. Okay. Here Q is equals to vq upon I. Here I is the moment of inertia of the entire cross section area around the neutral axis. So basically I आपका moment of inertia हो गया. Shear stress formula for beams. The shear stress formula is obtained by modifying the shear flow formula, which is df upon dx is equals to, इसको shear flow कहते हैं, is equals to dm upon dx q upon I. shear stress आपका टाउ क्या होता है, 1 upon t df upon dx, 1 upon t df upon dx. vq upon it इसको लिख सकते हैं फिगर से देख के, and which is also is equals to q upon t. अब अगर आप इस फिगर की बात करेंगे, ये आपका एक बीम है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, 3D फिगर है, ये dx पोर्शन है, टाउ इज इक्वल टू q इंटू dx, ये dx पोर्शन पे यहाँ पे लग रहा है. अगर आप इसका ये क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपकी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. ओके. सो बेसिकली दिस इज द फिगर इज ऑल अबाउट द shear stress परफॉर्मिंग इन अ पर्टिकुलर बीम पोर्शन. उसके लिए हमें क्या करना है, एक सेक्शन काटना है, और shear stress बीम में तभी जनरेट होती है जब वो डिपेंड ही इसी चीज पे करती है कि जब मोमेंट चेंज हो रहा हो
कोई दो एडजेसेंट पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ shear force और द shear stress इन अ बीम। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी कुछ तरीके की, जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, so basically there are four types of problems performed here in a shear stress in a beam. So problem 1 states that derivation of shear stress in rectangular cross section, मतलब shear stress अगर किसी भी rectangular cross section beam का है उसमें अगर आप जनरेट हो रही है तो वो उसका डिराइव कैसे करेंगे आप। सेकंड वन इज कंप्यूटेशन ऑफ shear stresses। थर्ड एंड फोर्थ आर आल्सो द सेम, कि उस shear stress को डिफरेंट टाइप के मेथड से या डिफरेंट तरीके से हम या डिफरेंट तरीके के बीम्स दिए हुए हैं तो उस shear stress को हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड to our next problem or the first problem, derivation of shear stress in rectangular cross section. Here the representation of derivation of shear stress in a rectangular cross section is given here. So basically derive an expression for the shear stress distribution in a beam of a solid rectangular cross section transmitting a vertical shear V. वर्टिकल shear उस पे लग रहा है किसी एक बीम पे, तो उसको आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में लग रहा है तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। Here is a figure performed here, KL and NM, यहाँ पे दो आपका चीजें दी गई हैं। यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ आपकी जो बीम की है वो D दी गई है और ये न्यूट्रल एक्सिस है, y बार गया हुआ है यहाँ से पहले लेयर तक की y1 है लेंथ। ओके, ये स्ट्रिप है, इसकी जो हाइट है वो dy है, थिकनेस को b से लिया गया है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बीम एज शोन इन फिगर, a longitudinal cut through the beam at a distance y1 from the neutral axis isolated area KLMN। KLMN ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका, न्यूट्रल एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे एक एरिया काटा गया है जो कि बीम के KLMN पोर्शन को उससे अलग करता है। सो बेसिकली shear stress का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, टाउ इज इक्वल टू VQ अपॉन IT। ठीक है, V अपॉन IT बाहर आ गया और Q को हम क्या लिख रहे थे अभी, क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू DA, और लिमिट क्या लगेगी पूरे ओवरऑल एरिया की। यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, ये D था, यहाँ से D/2, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक D/2 होगा, D/2 से लेके y1 तक, सॉरी y1 से लेके D/2 तक रहेगी। y1 यहाँ से यहाँ तक है, मतलब y1 यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके D/2 तक रहेगी। वही चीज यहाँ पे की गई है, b इंटू वाई उसका एरिया हो जाएगा ओवरऑल। तो v अपॉन IT तो अलग था, t को आपने b से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि थिकनेस जो है आप वो b ले रहे हैं। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी y1 टू D/2 एंड y क्या हो जाएगा by, और dA किस में चेंज हो जाएगा dy में। ठीक है, इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आ जाएगा v अपॉन 2i इन ब्रैकेट D/2 का होल स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, द shear stress distribution as in shown in below। इस तरीके का कुछ shear stress distribution होगा इसमें। Maximum shear stress occurs at a neutral axis and it can be found by putting y is equals to 0 in the equation 1। अगर इसमें y is equals to 0 आप रख देंगे तो मतलब कि ये यहाँ पे मैक्सिमम shear stress मिलेगी आपको, जबकि आप y is equals to 0 रख देंगे इस इक्वेशन में। सो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट द shear stress in rectangular portion। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, एक पोर्शन इसका y1 न्यूट्रल एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे अलग किया, इसको बोल रहे हैं आप KLMN, और जो उसकी थिकनेस ली उसको b के इक्वल ली, और उसके बाद सीधे सीधे उसको shear stress के फॉर्मूले में रख दिया, VQ अपॉन IT। VQ अपॉन IT था, Q को y इंटू DA लिख सकते हैं, और यहाँ पे y को आप क्या लिख सकते हैं BY इंटू DY। उसको इंटीग्रेट कर लिया आपने, आपकी shear stress की पूरी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई। मैक्सिमम की बात की गई है तो y इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम shear stress जो भी डेवलप हो रही है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट अ न्यूट्रल एक्सिस एंड इट कैन बी फाउंड बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में रख देंगे जब y की वैल्यू 0 तो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल आएगी, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारी कहाँ पे जनरेट हो रही है, न्यूट्रल एक्सिस पे। ओके, सो हियर द फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज कवर्ड एंड कंप्लीटेड हियर। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर second type of numerical. So now moving forward to our next problem type, which is the computation of shear stress. So basically the problem states that a vertical shear force of 1 kilonewton acts on a cross section as shown below. Find the shear at the interface per unit length. So basically here a T portion of the beam is performed here, in which the flange depth is equals to 100 mm and the length of this web is 100 mm. Also the thickness of this upper portion is 20 mm. So basically we also use the formula of the shear stress, that is Q is equals to VQ upon I. We first find the distance of the neutral axis from the top fiber. टॉप फाइबर ये हो गया, अब न्यूट्रल एक्सिस में दिया नहीं है तो न्यूट्रल एक्सिस हमारी कहाँ पे आएगी, लाई करेगी, उसके लिए हमें सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना है इसका। सो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल, if we are let us try a method in which a figure is performed here, in which the dimensions are given, which are all in mm. So basically आपसे ये इसमें ये बताया गया कि न्यूट्रल एक्सिस जो आपका लाई करेगा दैट इज कुछ इस जगह पे लाई करेगा, ठीक है। और सो बेसिकली सेंट्रॉइड हमें निकालना है इसका, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्टली, y इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, जैसा कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो उसके लिए टॉप फाइबर से अगर हम सेंट्रॉइड देख रहे हैं इसका, तो पहला एरिया हमारा ये हो गया डॉट लाइंड पोर्शन, दूसरा एरिया हमारा ये ब्लैंक पोर्शन हो गया। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया और द शेडेड पोर्शन एरिया, व्हाट वी कैन गेट, a1 इसका कितना आएगा 100 इंटू 20 इंटू y1 टॉप से कितना है 20 का आधा मतलब 10 प्लस a2 कितना आ रहा है 20 इंटू ये कितना है 100 है ओवरऑल, 20 इंटू 100 इंटू टॉप से इसका सेंटर तक, तो 70 निकल आएगा, 20 प्लस इस 100 का आधा कितना 50, ये वाले फिगर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ से आएगा, तो टॉप से अगर लेंगे तो देखिए 100 का आधा 50 पे काम करेगा इसका सेंट्रॉइड पर्टिकुलर A2 एरिया का, तो 50 प्लस 20 कितना हो गया 70 अपॉन a1 प्लस a2, a1 था 20 इंटू 100 प्लस a2 कितना है 20 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 mm, मतलब टॉप फाइबर से 40 mm तक हमारा 40 mm पे हमारा सेंट्रॉइड काम कर रहा है। नाउ Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dA ऑफ शेडेड एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो शेडेड एरिया हमारा कितना है 20 इंटू 100 इंटू 30, ठीक है, क्योंकि इसके सेंट्रॉइड से लेके मतलब कि ओवरऑल के बीम के सेंट्रॉइड से लेके इस पर्टिकुलर शेडेड एरिया के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 40 है सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, ठीक है। -10 इसमें से माइनस कर देंगे, टॉप वाला पोर्शन फाइबर का निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, मतलब शेडेड पोर्शन के सेंट्रॉइड से लेके ओवरऑल सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस कितनी निकल रही है वो निकालनी है हमें, विच इज 30। क्यू हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस सेंट्रॉइड की वहां से 30 होगी, विच इज 6 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, now if v is equals to 1 kilonewton as given in the question, I is equals to bd cube by 12 plus ah square plus bd cube by 12 plus ah square। पहले वाले पोर्शन के लिए b कितना है हमारा 20 इंटू डी कितना है 100 अपॉन 12, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 20 इंटू 100 एरिया ए वाला, एच कितना है 30, दूसरे वाले के लिए भी 30, सेम उस हिसाब से हम आई निकाल लेंगे। और क्यू हमारा क्या होता है वी क्यू अपॉन आई, जैसा कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था,
V की वैल्यू 1 रख देंगे, किलो न्यूटन है, 10⁻³ हो जाएगा। Q की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, 16×10⁻⁴। I हमने कितना निकाला है, 5.33 10⁻⁶। उसके बेसिस पे हमारी Q निकल आएगी 11.5 किलो न्यूटन पर लीटर। So basically this is the second type of numerical as in the portion of the deflection of beam, which is also very important from the exam point of view. Basic calculation है आपका, centroid है, moment of inertia है, इन सारी चीजों का, nothing else. Okay, so now moving forward to the third type of the numerical, that is computation of shear stresses. It means problem states that a 6-meter long beam with a 50 mm by 50 mm cross section is subjected to a uniform loading of 5 kilonewton per meter. Find the maximum shear stress in beam. ये बीम है, इसमें इधर सिंपली सपोर्टेड पोर्शन दिया हुआ है, इधर रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यूडीएल जो इस पे लग रहा है वो 5 किलोन्यूटन पर मीटर का लग रहा है ओवरऑल द स्पैन। एज वी ऑल नो shear stress निकालना है, shear stress की वैल्यू कितनी होती है, tau max is equal to 3V/A, where V is the shear value and A is the particular area. We first find the section of maximum shear force. We know this is the support and it is equals to 5/6। मतलब हमारा ओवरऑल रिएक्शन कितनी निकलेगी, देखिए 5 किलोन्यूटन की ओवरऑल लग रही है, 5 और 6 मीटर तक लग रही है, तो 5/6 30 हो जाएगा वो, और आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, ठीक है, वो आ गया 15 किलो न्यूटन, ठीक है। रिएक्शन एट सपोर्ट रिएक्शन हमारी 15 किलो न्यूटन की आ गई दोनों, ठीक है। We also know that the maximum shear stress occurs at the center for a rectangular cross section and is 1.5 times the average stresses, ठीक है। So basically tau max is equals to 3V/A। ये 50 mm by 50 mm का एक एरिया हो गया, ठीक है। उस हिसाब से हम इसमें जो भी आपका कैलकुलेशन है वो इसमें कैलकुलेट कर देंगे, तो टाउ मैक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3V की वैल्यू कितनी निकाली, 15 किलो न्यूटन अपॉन 2A। A कितना निकला है, 50 mm by 50 mm का एरिया है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी 9 MP, ठीक है। सो ये तो देखा जाए तो काफी आसान सा न्यूमेरिकल है ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3V/2A। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट और द नेक्स्ट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Here the cross section of a I beam as shown below. Find the maximum shear stress in the flange if it transmits a vertical shear of 2 kilonewton। यहाँ पे shear की भी वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। आपसे कहा गया है कि फ्लैंज में मैक्सिमम shear निकालनी है अगर ये वर्टिकल shear ट्रांसमिट करती है 2 किलोन्यूटन। So here is the base, here are the basic dimensions of that particular I section of the beam. Here the width of flange is 100 mm, thickness of flange 10 mm, एंड वेब की बात करेंगे तो 100 mm की है इसकी ओवरऑल डेप्थ और थिकनेस इसकी 10 mm है। एज वी ऑल नो टाउ इज इक्वल्स टू VQ/IT। V इज इक्वल्स टू 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है। I हम कैसे निकालेंगे, BD³/12 प्लस AH² से। देखिए टॉप पोर्शन से निकाल लें तो BD³/12, देखिए ये तो दो पोर्शन सेम ही है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई ये तो सिंपल ही रहेगा, ये जो दो पोर्शन है उसका मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लिया गया है डायरेक्टली। तो I इज इक्वल टू 10 इंटू ये वाले पोर्शन की अगर बात करेंगे तो B हमेशा पैरेलल वाला लेते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं, तो B इसके लिए हो जाएगा 10, D कितना हो जाएगा 100, BD³/12 प्लस ये दोनों पोर्शन सेम है, उसमें BD³ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 100, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन, ठीक है। D कितना हो जाएगा 10, 10 का क्यूब बाई 12 प्लस AH², एरिया कितना है B इंटू D, 100 इंटू 10 इंटू H²। ओवरऑल देखिए टॉप फाइबर से लेके सेंटर तक की बात की गई इसके, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, और इसका आधा लेंगे तो 55 हो जाएगा। H हमारा ये निकल के आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 क्योंकि ये दो पोर्शन सेम है, तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल I निकल के आ गया। Q इज द मैक्सिमम एट जो मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे काम करेगा,
at the Q is the maximum at the midpoint as shown below. ये जो पोर्शन है इस फ्लैंज के मिड पॉइंट पे सबसे ज्यादा काम करेगा, ठीक है, जो शियर स्ट्रेस उसका शियर जो आएगा। तो Q इज इक्वल्स टू 55 इंटू 10, इतने पोर्शन पे मैक्सिमम Q काम करेगा आपका, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है फ्लैंज की बात करिए, फ्लैंज में कितना शियर फोर्स जनरेट होगा, यहीं पे काम करेगा वो। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी होगी 55 mm, ठीक है, ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू 10 इंटू 55, मतलब ये जो पोर्शन है इतने पोर्शन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस काम करेगी, और उसका सेंट्रोइड कहाँ जाएगा, एच से। एच कितना है, 55 है। क्यू हमारा कितना निकला, 50 इंटू 10 इंटू 55। ओके, सो नाउ टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वी क्यू अपॉन आई टी। वी की वैल्यू 2 किलो न्यूटन, 2 इंटू 10⁻3, क्यू की वैल्यू 50 इंटू 10 इंटू 55 अपॉन आई टी, आई की वैल्यू 6.9 10⁻6, ठीक है, और टी कितना निकला है, 10 mm था, उसको मीटर में चेंज कर लिया। एंड बाय सॉल्विंग दिस we can say that tau max value is 0.79. So basically in this lecture we studied about the basics of shear stress in a beam and also solved the different types of numericals so that can be used in the further studies. So basically these are 4 types of numerical which are also very useful in the exam point of from the exam point of view. So for this lecture that's enough, and mostly the topic of deflection of beam is covered here. So thank you so much.